So, hello and welcome back to my channel Average Aspirant. My name is Aditya Arvind Pandey and I have appeared for UPSC CSE interview 2025. The agenda of today's video is to discuss six mistakes that will cost you or that will ruin your attempt this year. So, keep that in mind. Please do not repeat those mistakes. Approximately 105 days are left for the UPSC prelims examination. Please keep your preparation on track. Please stand on your toes right now because ये टाइम अगर चले गया then पूरे एक साल की मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी. ठीक है. So coming back to the topic of the video, we'll keep the video short and crisp. ठीक है. Nothing very fancy. All if I talk about myself, I've appeared for six prelims. I've failed five prelims, and I could qualify for the forest cutoff in my final attempt. So yes, I cannot tell, I might not be the best person to tell you how to clear the prelims examination, but I'll be the best person to tell you how to avoid those mistakes so that you are on a repeated cycle of appearing prelims again and again. So yes, six mistakes. If you do them, this will cost you a year, and this will ruin your attempt this year. So first, so again, I don't have a notepad. I've written it down on a paper. So the first and the foremost mistake is that you do not have a strategy and you are studying very haphazardly. ठीक है. अगर लास्ट के 100 दिन में आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और एक आप रैंडम तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आप सुबह उठ के इकोनॉमी पढ़ लेते हो, दोपहर में उठ के फिर सो जाते हो, फिर दोपहर में मॉडर्न पढ़ लेते हो, फिर रात में कुछ और पढ़ लेते हो, अगर ऐसी आपकी तैयारी चल रही है तो कोई प्लान नहीं है आपके पास, देन बिलीव मी, देन यू आर गोइंग नो वेयर. ठीक है. प्लीज मेक अ प्लान. नो वन एल्स विल मेक इट फॉर यू. ठीक है. आई नो देयर आर मेनी कोर्सेज जो आपको मेंटरशिप देंगे, एक स्पून फीडिंग करेंगे, बट आई आई थिंक दे वर्क. एक लेवल तक वो काम करेंगे, उसके ऊपर आपको ही काम करना पड़ेगा. सो यस, इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रेटेजी, इफ यू आर स्टडीइंग हैप्पीजार्डली, देन दिस विल कॉस्ट यू अ ईयर. सो प्लीज मेक अ स्ट्रेटेजी. So I expect that majority of the serious aspirants who are appearing this year, they have covered their syllabus at least once. ठीक है. तो इसके बाद से आपको रिवीजन ही करने आना है. आपको पूरा सिलेबस पता चल गया. यू नो द न्यूएंसेस ऑफ द एग्जामिनेशन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे किस टाइप का कैसे हमारा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट है और किस तरीके से उन्हें पढ़ना है. तो एटलीस्ट यू हैव कवर्ड देम वंस. सो आई एनी सीरियस एस्पिरेंट हु हैज कवर्ड द सिलेबस वंस विल फोकस ऑन रिवीजन फ्रॉम नाउ. ठीक है. यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट, सो यू कीप ऑन रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन. ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. 80-20% का रूल है जो मतलब 80% of the questions come from 20% of the important topics. And you need to know your strength and weaknesses. You need to know that if you are attempting 18 questions from polity, then at least you need to get right 15 questions. If you are attempting any consequential questions from economy in the prelims examination, you need to make sure that you get all those questions correct, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चन सारे कंसेप्ट से ही आते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट मिस्टेक इज, if you don't have a strategy and you are studying haphazardly, so please avoid this mistake and please make a plan for the next 105 days. So coming back to the second mistake is the multiplication of sources. ठीक है. अगर आपने एक एक बार सिलेबस पढ़ लिया है तो आई एक्सपेक्ट या द एग्जाम ऑल्सो एक्सपेक्ट कि जो आपने पढ़ा है आप उसको बार बार रिवाइज करें. दैट विल गिव यू मैक्सिमम आउटपुट इन द एग्जामिनेशन rather than you keep on multiplying your sources. For example, if you're done art and fine art and culture from Fine Arts NCERT, and if you go on and read Nitin Singhania, then that is not going to add any value to your that is not going to add any value to your score, because the content remain the same, majority of the things remain the same, but you are multiplying your sources. So ऐसा तो नहीं होगा कि आप नितिन सिंघानिया भी 3 बार रिवाइज करके जाओगे, फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी भी 3 बार रिवाइज करके जाओगे. ठीक है. So for me, fine arts NCERT was a very short and crisp notes, so I could revise it 4 to 5 times before the examination, and that gave me a maximum output in the examination also. So yes, do not multiply your sources. Keep your sources limited. One subject, one source. Keep it very limited and revise it maximum times. So third mistake, leaving any subject thinking that it is not important. So see, the point is not to cover the entire syllabus. ठीक है. कोई ये बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको सिलेबस कवर करने पर नंबर मिल रहे हैं, बट यू शुड ऑल्सो कीप दैट इन माइंड दैट यू शुड नॉट लीव एनी सब्जेक्ट. डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न. ठीक है. ऐसा ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है. लोग बोलेंगे मेडिवल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिलीव मी, दे कैन चेंज देयर पैटर्न एनी टाइम एंड दे कैन आस्क एनी क्वेश्चंस, एनी रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री. ठीक है. फॉर सो एनी अदर सब्जेक्ट्स, लीविंग एनी सब्जेक्ट्स, उसका मतलब ये है कि आपको यू हैव टू डू द ट्रिवियल सब्जेक्ट्स ऑल्सो. जैसे आपको साइंस एंड टेक भी करना पड़ेगा. बेसिक साइंस आप पढ़ लीजिए थोड़ी सी. ठीक है. आईआर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको आईआर भी करनी पड़ेगी. आप करंट अफेयर से आप आईआर कर सकते हैं. ठीक है. मैपिंग करनी पड़ेगी. मैपिंग से 2-3 क्वेश्चन आते हैं. सो दीज आर वेरी ट्रिवियल सब्जेक्ट दैट पीपल लीव देम फॉर द एंड, एंड वो भूल जाते हैं उसको करना. बट बिलीव मी, एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन इन्हीं छोटे छोटे सब्जेक्ट से आते हैं, एंड दे कैन गिव यू एज
और अदर एस्पिरेंट्स जो सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट करके जाते हैं जैसे पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी एंड दे लीव IR, दे लीव मैपिंग, दे लीव साइंस एंड टेक। ठीक है, तो यू नीड टू कीप दोस थिंग्स इन माइंड एंड आपको जो डू नॉट लीव एनी सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड कवर देम इन इंटायरिटी, डू नॉट फोकस ऑन रनिंग बिहाइंड, डू नॉट रन बिहाइंड कवरिंग द एंटायर सिलेबस, बट आपको पूरा सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि ये यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आई विल ट्राई टू रिवाइज दो सब्जेक्ट। So coming back to the fourth mistake is procrastination about CSAT. Believe me, those aspirants who have failed in the CSAT in the last year and they haven't started any CSAT preparation till now, so you are going to land in trouble. So do not leave CSAT for the end, क्योंकि end में you have to revise your static, you have to revise your current affairs, you have to मतलब थोड़े बहुत आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, उसी के बीच आपको CSAT भी करना पड़ेगा। अगर आप 3-3 घंटे हर एक चीज में लगा रहे हो तो उसके बाद आपके पास दिन में टाइम ही नहीं है CSAT करने के लिए। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे, इफ यू आर दैट एस्पिरेंट हु थिंक्स दैट आई कीप ऑन डिलेइंग माय CSAT प्रिपरेशन टिल एंड, सो यू आर नॉट गोइंग टू डू इट। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप उसको एंड में भी नहीं करोगे, ऐसा होने ही नहीं वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन सीसैट की अपनी चालू कर सकते हो। स्टार्ट विद अ कॉम्प्रीहेंशन। देयर आर 27 क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम कॉम्प्रीहेंशन, सो प्लीज स्टार्ट विद कॉम्प्रीहेंशन। एटलीस्ट हैव अ एज ओवर अदर एस्पिरेंट्स। ठीक है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है प्लीज वो कर लें कॉम्प्रीहेंशन। 27 क्वेश्चन आते हैं, 27 में से आप 40-50 नंबर कॉम्प्रीहेंशन से ले आ सकते हैं, बाकी आप मैथ्स कर लीजिए थोड़े दिन में। सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, डू नॉट डिले योर सीसैट प्रिपरेशन टिल द एंड, प्लीज स्टार्ट दैट। जिनका स्पेशली फॉर दोज एस्पिरेंट्स हु हैव फेल्ड सीसैट इन द प्रीवियस अटेम्प्ट, प्लीज स्टार्ट योर सीसैट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। एंड फिफ्थ मिस्टेक इज क्राइंग ओवर लो स्कोर्स एंड वेस्टिंग योर टाइम कि मेरे तो टेस्ट सीरीज में नंबर ही नहीं आ रहे हैं, आज का दिन मेरा बर्बाद हो गया, मैंने इतनी पढ़ाई की थी और मेरे 40 नंबर आए। तो कोई कोई इशू नहीं है, यू हैव रेड योर सब्जेक्ट ओनली वंस टिल नाउ एंड यू आर अपेयरिंग फॉर अ फुल लेंथ टेस्ट। सो बिलीव मी दैट इज नॉट गोइंग टू फेच यू मैक्सिमम मार्क्स। आपके मार्क्स तभी आते हैं व्हेन यू रिवाइज योर सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 to 4 times। सो द पर्पज ऑफ टेस्ट सीरीज इज नॉट टू मतलब अगर आपके टेस्ट सीरीज में अच्छे भी स्कोर आ रहे हैं देन डू नॉट डेल्व इनटू द यूफोरिया कि मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है। अगर आपके स्कोर कम भी आ रहे हैं, सो डू नॉट स्टार्ट पैनिकिंग। ठीक है, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। स्कोर्स आपके टेस्ट सीरीज के कोई मैटर नहीं करते हैं, इट इज जस्ट मेंट फॉर प्रैक्टिसिंग। Keep that in mind. Keep on practicing questions. Keep on doing mistakes in test series and keep on learning from those mistakes. That's what I did. I got 51. Time and again I tell you this that I got 51 in my Abhyas, and final आपको पता ही है, I got my score in prelims were ranging from 104 to 112. So yes, please do not cry over low scores. They मतलब I mean test series are important but scoring उसमें क्या score आ रहे हैं क्या हो रहा है that doesn't don't मतलब उससे bother हो ही मत। ठीक है, डू नॉट केयर अबाउट इट, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन डूइंग मिस्टेक्स इन टेस्ट, ताकि आप फाइनल एग्जाम में कोई मिस्टेक ना करो, एंड कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम दोस मिस्टेक्स। दैट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट सीरीज। सो स्टॉप क्राइंग ओवर लो स्कोर्स इन टेस्ट सीरीज, दैट्स व्हाट आई मीन। ओवर एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर्स एंड लास्ट मिस्टेक व्हाट पीपल टेंड टू डू कि दे ट्राई टू मतलब ओवर एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर्स ओवर स्टैटिक, मतलब दे ट्राई टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू करंट अफेयर्स rather than static subjects. मतलब those people who find current affairs very worthy reading and they think they can fetch very good marks by reading current affairs and putting more emphasis on current affairs over static, I believe that's not going to work because current affairs के question there is no end on reading current affairs। ठीक है, आप कितना भी पढ़ते जाओ कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आ ही जाएंगे, और वहां पे आपको नॉर्मल दिमाग लगाना है, वहां पे नॉर्मल एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, बेसिक चीजें लगानी है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, बैगिंग योर नॉलेज विद इट। ठीक है, नॉट रिलाइंग सोनली ऑन एलिमिनेशन टेक्निक्स। सो स्टैटिक इज लिमिटेड। सी गिनती की 6 किताबें हैं, आपको उसको मैक्सिमम बार पढ़ के जाना है एंड बिलीव मी दे विल फेच यू मार्क्स rather देन आप 12 महीने के करंट अफेयर्स निकालो, 1200 पेज के ऊपर हो जाएंगे, उनको 3 बार पढ़ के जाओ, 3600 पेज हो जाएंगे, और उसमें से आप सोच रहे हो कि मेरे को एक रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा उसको मैं सही कर लूंगा जिसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो आई बिलीव कि दैट इज मोर ट्रिवियल, यू विल लैंड इनटू ट्रबल इफ यू आर स्टडीing more of current affairs rather than static. So please do not do that mistake. Please focus more on static, they will fetch you more marks, believe me। करंट अफेयर्स के आप जैसे व्हाट आई डिड फॉर करंट अफेयर्स, आई डिड करंट अफेयर्स फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। सो आई ट्राई टू शॉर्ट डाउन माय सिलेबस सो दैट आई कुड रिवाइज इट मैक्सिमम एंड रिटेन इट मैक्सिमम। सो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक मैंने किया था, तो दीज आर अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 months ऑफ करंट अफेयर्स, 600 to 700 pages, I could revise them 3 times. So that's what I did. So a gist of all the things that I did, this gist of all the things that I told you, the 6 mistakes that are going to ruin your attempts. First is not having a good strategy and studying very haphazardly. Second is multiplication of sources. Third is leaving the subject thinking that it is not important. Fourth is procrastination and delaying CSAT preparation. Fifth is crying over low scores and wasting your entire day over why you got low scores in prelims test series. And last but not the least,
is focusing more on current affairs over static. Please do not focus more on current affairs. Focus on your static subject that will fetch you marks. So thank you and have a great day. That's it from my side. I'll be back with another video. Bye bye.